আপনারা সবাই এবং মায়ের বলবো মাগো 10টা বছর অনেক সাহস নিয়ে 25 বছর মাথা টুকে আপনারা গণতন্ত্রকে রক্ষা করেছেন। আপনারা স্বপ্ন ভোলেননি, আশা ছাড়েননি। কংগ্রেসের বেইমানি সত্ত্বেও দিল্লিতে দোস্তি আরেকারে কুস্তি করে আমাদের শেষ করে দিয়েছে। শতাব্দী প্রাচীন কংগ্রেস এই হাজারো শহীদের রক্তকে অপমান করে আজকে তাদের পায়ে আত্মসমর্পণ করে 13টা আসন নিয়েছে। এই সুযোগ পশ্চিমবাংলায় শূন্য হয়েছে এবং আমার হয়তো দুঃখ হবে, গণতন্ত্রের একটা শক্তিশালী বিরোধী দল আমি চাই, কিন্তু আমি যদি অধ্যক্ষের দল আমাকে দেয় তাহলে আমার পা দিকে দেখব যে কংগ্রেস শূন্য এবং সিপিএম শূন্য। এটাই তাদের ভবিষ্যৎ, এটাই রাজনীতি তারিখ হবে। আপনারা শান্ত থাকুন, প্রগতির পক্ষে প্রশস্ত করুন। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে ধৈর্য ধরে এই মিটিংটা সবাইকে অনেক ধন্যবাদ, আমার প্রণাম এবং ভালোবাসা প্রোগ্রাম শুনে বলে জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। মহাশয়কে অসংখ্য ধন্যবাদ। এবারে বক্তব্য রাখার জন্য বিভাগীয় অনুরোধ রাখবো 4 বছর বিধানসভা কেন্দ্রে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী ডক্টর টিভি দাস মহাশয়ের কাছে। সবাইকে নমস্কার, ফুলুন খা। আমাদের রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ শ্রী জেপি নাড্ডাজি এবং অন্যান্য বরিষ্ঠ নেতৃবৃন্দ, 23 আবার মোদীজি, নাড্ডাজি, অমিত শাহজি, আমরা তাদের কথা শোনার জন্য বসে আছি। সামনে 2 মিনিট কথা বলব। 18তে আমরা লড়াই করেছিলাম সিপিএম এর সাথে। এইবার লড়াই সিপিএম এবং কংগ্রেস অশুভ আকারের সাথে, অশুভের সাথে দেবতার পার্টির লড়াই। আপনাদের বাড়িতে রাহু কেতুর ছায়া পড়তে দেবেন না। যখনই এরা বাড়িতে যাবে তাদেরকে গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে বলবেন ভারতীয় জনতা পার্টি 5 বছর সেটা শাসন করতে পারে নাই, 2.5 বছর কোভিড, 2.5 বছর চলে গেছে, আমরা কাজ করেছি। সুতরাং আমরা ভারতীয় জনতা পার্টিকে 5 বছরের একটা টান দেব, এটা বদ্ধপরিকর। আরেকটা খবর আমার কাছে এসেছে, এই কিছুক্ষণ আগে শুনেছি এই অশুভ আকার বাড়ি বাড়ি রাতের অন্ধকারে যাচ্ছে, ওরা টাকা বেরোচ্ছে। আপনারা আপনাদের বুথে বুথে পাহারার বন্দোবস্ত করুন। যদি এই কালো চক্র, অশুভ চক্র, রাহু কেতু কোথাও যদি টাকা বসাতে চেষ্টা করে আপনারা তাদের বাধা দেবেন, কারণ আমাদের জয় নিশ্চিত। আমাদের রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ, আমাদের নেতা মোদীজি, আমাদের নেতা। বাড়ি বাড়ি গিয়ে আমরা বলছি শুধু পদ্ধতির ছাড় দিন। ভারতীয় জনতা পার্টির কাছে ব্যক্তি ক্যান্ডিডেটের কোনো মূল্য নাই। আমি দেখছি যে বলে সর্বভারতীয় লিডার থেকে শুধু সবাই মিলে আমাদের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ, যেভাবে আমাদের জিতাবার জন্য উঠে করে দিয়েছেন। আমাদের 80 ঘন্টা সময়, এই কয়েকদিনের মধ্যে দিন আমরা 7 প্রেসিডেন্ট বলেছে, আমাদের তার বিশ্বাস আমরা সব ঠিক পাবো। আজ থেকে খাওয়া দাওয়া বন্ধ দিতে হয়, করতে হবে কম মন ধন দিয়ে এই সরকার সম্মানের জায়গা। এই শিক্ষা ধন্যবাদ। মহাশয়কে অসংখ্য ধন্যবাদ। এবারে বক্তব্য রাখার জন্য বিভাগীয় অনুরোধ রাখবো রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়ের কাছে। সবাইকে নমস্কার। আজকের এই দয়াপুর বিধানসভা বিজয় সংকল্প যে জনসভা উপস্থিত আছেন আমাদের সভা আদরণীয়, পূজনীয়, আমাদের সর্বভারতীয় ভারতীয় জনতা পার্টির সভাপতি আদরণীয় জেপি নাড্ডাজি এবং এখানে আজকের আমাদের
যে সদর রুরাল ডিস্ট্রিক্টে যে দুজন আমরা এখান থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে মনোনয়ন দিয়েছি দুর্গাদের থেকে এই খয়েরপুরে আগেও এবং বর্তমানে উনি মাননীয় বিধায়ক এবং পবিত্র বিধানসভা মাননীয় স্পিকার শ্রী রবীন্দ্র চক্রবর্তী মহোদয় এবং ডক্টর দিলীপ কুমার দাস যিনি বর্তমান কেন্দ্র থেকে দাঁড়িয়েছেন এবং অন্যান্য যারা মহানুভূত আছেন এবং এখানে মিডিয়া বন্ধুরা এবং মহামন্ত্রীরা সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। বন্ধুগণ, আমি বেশি কিছু কথা বলবো না, শুধু আমরা আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাকে এখানে আপনাদের উদ্দেশ্যে উনি কিছু বলবেন, সেইগুলো আপনারা শুনবেন মনোযোগ দিয়ে। তারপর একজন আমি অনুরোধ করবো এখান থেকে না যাওয়ার জন্য। বন্ধুগণ, কংগ্রেস, সিপিএম, তৃণমূল, এখন আবার সেই মথা এবং কবি, তাদের থেকে আমাদের যদি মুক্তি আমাদের পেতে হয় তাহলে ভারতীয় জনতা পার্টি যার সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা হবে আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, ওনাকে প্রত্যেক চিহ্নে ভোট আপনারা দেবেন এই আশা আমি রাখছি। এবং 16 তারিখ আপনারা যথাসময়ে সকালে সকালে গিয়ে নিজেরাও আমাদের যে দুই প্রার্থী আছে এই খয়েরপুর কেন্দ্রের সমস্ত ভাই বোনদের অনুরোধ রাখবো সকাল সকাল 16 তারিখ গিয়ে প্রত্যেক ভোট দেবেন এবং বিপুল ভোটে আগে যে ভোট পেয়েছে তার থেকে আরো বেশি ভোটে ওনাকে জয়যুক্ত করবেন। এবং এখানে বটতলার যদি কেউ থাকেন বা বটতলার বাসীকে জানিয়ে দেবেন আপনাদের বন্ধুদের যে ওনাকে জন্য বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করে এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। নমস্কার, বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অসংখ্য ধন্যবাদ। এবারে বক্তব্য রাখার জন্য বিনম্র অনুরোধ রাখবো ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রী জেপি নাড্ডাজি মহাশয়ের কাছে। भारत माता की, भारत माता की। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज की जनसभा में मेरे साथ उपस्थित हमारे त्रिपुरा प्रदेश के लोकप्रिय, यशस्वी और संवेदनशील मुख्यमंत्री सम्मानीय डॉक्टर मारिक साहब जी, हमारे प्रदेश के हमारे नॉर्थ ईस्ट के कोऑर्डिनेटर श्री संबित पात्रा जी, हमारे चुनाव के प्रभारी और लोकसभा में मेरे साथी महेश शर्मा जी, हमारे इस क्षेत्र के बगल के प्रत्याशी दिलीप कुमार दास जी, हमारे यहाँ के प्रत्याशी रतन चक्रवर्ती जी, हमारे सुरेश राणा जी जो पूर्व में मंत्री रहे हैं और यहाँ क्लस्टर के इंचार्ज हैं, असित रॉय जी डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट, अमित नंदी जी, मुकुल रॉय जी, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवियों और सज्जनों, मेरे युवा नौजवान साथियों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मैं जब यहां पर आया हूं तो सबसे पहले तो चतुर्दश मंदिर को नमस्कार करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। और जब मैं त्रिपुरा में आया हूं तो मां सुंदरी का, त्रिपुरा सुंदरी का आशीर्वाद लेकर के माता को नमन करते हुए 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ जो शक्तिपीठ है उन्हें नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, आज ही मुझे ये मौका मिला कि 2023 से आगे चलकर 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आपके आशीर्वाद से चुनकर आएगी, उसने जो काम करना है उसके बारे में मैंने आज लोगों से चर्चा की है और मैनिफेस्टो को रिलीज भी किया है, संकल्प पत्र को रखा भी
20 के मुकाम पर खड़े हैं, तो कौन पार्टी आगे क्या करेगी, इसका आधार क्या है? आज जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मैं आपके सामने जो कह रहा हूं, उस कहने का आधार क्या है? आप कैसे विश्वास करेंगे कि जो मैं आज कह रहा हूं वो 5 साल बाद मैं पूरा कर पाऊंगा कि नहीं? उसका एक ही आधार है कि जो 5 साल पहले मैंने कहा था उसको करके दिया है, वही उसका आधार बन सकता है। हमने कहा था 2018 में कुछ बातों के लिए त्रिपुरा से अलविदा हो जाएगा, उसका निकास द्वार होगा, उसका एग्जिट डोर होगा। त्रिपुरा की धरती पर 2018 के बाद वो बातें नहीं दिखेगी। और आज मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि हम लोगों ने त्रिपुरा की धरती से लाल आतंकवाद को अलविदा कह दिया और उसको समाप्त कर दिया। आज हम गौरव के साथ ये कह सकते हैं, जो 2018 में त्रिपुरा भ्रष्टाचार में लिप्त था, आज उसको भ्रष्टाचार मुक्त बना दिया, ये हम गौरव के साथ कह सकते हैं। आज हम कह सकते हैं त्रिपुरा जो करप्शन और कमीशन के लिए जाना जाता था, उसको करप्शन और कमीशन मुक्त बना दिया, ये हम गौरव के साथ कह सकते हैं। आज हम ये कह सकते हैं कि गुंडा राज, क्रिमिनलाइजेशन, राजनीतिक द्वेष के कारण लोगों को समाप्त करना, ये 2018 तक की सीपीएम की नीति थी। लेकिन 2018 के बाद गुंडागर्दी को जरूर से समाप्त करने का काम हम लोगों ने किया। और सबसे बड़ी बात है कि 2018 में और 2018 से पहले इस सीपीएम का लेवी राज, इस लेवी राज से भी छुट्टी दिलाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और 2018 ये स्वागत द्वार भी बना, ये प्रवेश द्वार भी बना। ये प्रवेश द्वार किस बात का बना? ये प्रवेश द्वार बना विकास का, ये प्रवेश द्वार बना शांति का, ये प्रवेश द्वार बना सद्भाव का, ये प्रवेश द्वार बना शांति का, ये प्रवेश द्वार बना तरक्की का, और ये प्रवेश द्वार बना उन्नत त्रिपुरा, समृद्ध त्रिपुरा का। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं, आप लोगों का आशीर्वाद मिला था, 43% वोट आपके मिले थे। आज ये जनसभा को देखकर मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में हमारे वोट प्रतिशत में भी इजाफा होगा और आपका आशीर्वाद मिलेगा। त्रिपुरा की तस्वीर थी बंद, ब्लॉकेज, इंसर्जेंसी, और आज मैं ये कह सकता हूं कि त्रिपुरा की तस्वीर है पीस, प्रोस्पेरिटी, डेवलपमेंट, शांति, विकास, तरक्की। यह गौरव के साथ कह सकते हैं। उसी तरीके से त्रिपुरा ने एक तरीके से मार्ग दिखाया, और मार्ग ये दिखाया है
पहले विप्लव देव की सरकार में और बाद में मानिक शाह जी की सरकार में, कि त्रिपुरा 5 साल में कितना बदल सकता है, इसकी तस्वीर और जीती जागती तस्वीर आज त्रिपुरा है। यहां दिल्ली से आए मैं पत्रकार भी मैं देख रहा हूं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं 5 साल पहले जब आप एयरपोर्ट पर उतरते थे तो पता नहीं कौन सी संकरी सी गली से गुजरते हुए लगता था पता नहीं किस गांव के कस्बे में आ गए। और आज जब 2023 में आप त्रिपुरा के एयरपोर्ट पर उतरते हो तो आपको 4 लेन मिलता है, 24 सड़कें मिलती हैं, विकास की नई कहानी कहते हुए। ये बदलती हुई तस्वीर और ये जो विजय संकल्प रैली में देख रहा हूं, ये जो आप लोगों ने संकल्प लिया है, ये अपने आप में बताता है कि आपने तय कर लिया है कि त्रिपुरा में एक बार भाजपा, बार भाजपा, ये आपने तय कर लिया। मित्रों, मैं देख रहा हूं इतनी बड़ी संख्या में हमारी बहनें आई, मातृशक्ति आई है। मुझे खुशी है कि मैं आपको ये कह सकूं कि आज ही हम लोगों ने तय किया है कि अगले 5 साल में बालिका समृद्धि स्कीम के तहत हमारे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में आने वाले लक्ष्मी के लिए 50,000 रुपए का बॉन्ड लेकर के लक्ष्मी को आगे बढ़ाएंगे। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना के तहत जो पढ़ने वाली बच्चियां हैं, जो पढ़ने में तेज हैं, जो आगे बढ़ेंगी, उनके लिए त्रिपुरा की सरकार उनको फ्री में स्कूटी देगी ताकि वो विकास कर सकें। मैं यहां बैठे हुए बहनों को देख रहा हूं, आपको बताना चाहता हूं कि जिन लोगों को उज्ज्वला गैस मिली है उनको त्रिपुरा सरकार साल में 2 एक्स्ट्रा सिलेंडर भी मुफ्त का देगी। ये भी है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, हमारी सरकार गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, नौजवान, हमारे किसान भाई, हमारी बहनें, उनके लिए समर्पित है। और इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि हम अनुकूल चंद्र कैंटीन के तहत दिन में 3 बार भोजन देंगे और 5 रुपए प्रति मील के हिसाब से हम भोजन की व्यवस्था करेंगे। उसी तरीके से हम जैसे जनजाति भाइयों के लिए समर्पित हैं, हम आदिवासी भाइयों के लिए समर्पित हैं। और इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि जो हमारे आदिवासी भाई परिवार हैं उनको हम 5,000 रुपए का उनको सालाना हम असिस्टेंस देंगे, आर्थिक मदद देंगे ताकि वो अपने घर से काम को आगे बढ़ा सकें। मित्रों, हम सब लोग प्रजातंत्र में हमारे प्रधान समाजपति मजबूत बने, इसके लिए हम समर्पित हैं। और इसलिए उनका मानदेय 2,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया जाएगा, इसके लिए भी हम समर्पित हैं। उसी तरीके से किसान भाइयों के लिए जहां प्रधानमंत्री मोदी जी सालाना 6,000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में देते हैं, उसी में मानिक शाह भी 2,000 जोड़ेंगे और 8,000 रुपए प्रति सालाना देने का काम है। और इसी तरीके से हमारे मत्स्य सहायक योजना के तहत हमारे जो मछली पालन का काम करते हैं उनको भी सालाना
6,000 रुपए का आर्थिक मदद दी जाएगी। इस तरीके का हम करेंगे। इसलिए हम कहते हैं यही बीजेपी और एक बार उन्नति हो गए लगातार। मित्रों, जब मैं डबल इंजन की बात करता हूं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल चुका है, आगे बढ़ चुका है। आपको खुशी होगी, जिन अंग्रेजों ने हमको 200 साल तक राज किया, आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि उनको पछाड़कर जो भारत 10वीं आर्थिक व्यवस्था थी, वो ब्रिटानिया को पछाड़कर, अंग्रेजों को पछाड़कर 5वीं आर्थिक व्यवस्था बन चुकी है। आज विकास दर में हम अमेरिका से आगे हैं, हम चाइना से आगे हैं, हम फ्रांस से आगे हैं, हम यूरोप के कई देशों से आगे हैं। ये आज भारत की तस्वीर बनी। इस बात में यानी स्टील के प्रोडक्शन में दुनिया में हम दूसरे नंबर पर खड़े हो गए। आप लोग जब छोटे होंगे तो सुनते होंगे ये जापानी गाड़ी है, ये ऑटोमोबाइल है, ये डैटसन है, ये टोयोटा है, ये जापानी गाड़ी है। आपको जानकर खुशी होगी कि गाड़ी बनाने में भी भारत ने जापान को पछाड़कर तीसरे नंबर पर आज खड़ा हो गया है गाड़ी बनाने। आपके पास मोबाइल होगा। 9 साल पहले 92% मोबाइल बाहर से आते थे, बाहर से, और कुछ ऐसे देश से आते थे जो हाथ में फट जाते थे। मैं ठीक बोल रहा हूं, नहीं बोल रहा हूं? कुछ ऐसे देश से आते थे जो हाथ में फट जाते थे। आज आपको जानकर खुशी होगी कि 97% मोबाइल अब भारत में बन रहे हैं। दूसरे नंबर का देश भारत बन गया। मित्रों, अगर मैं बात करूं तो मुझे खुशी है। मैं त्रिपुरा में जब आया, अगर मोदी जी ने, मैं कई बार सुनाता हूं इस किस्से को। मैं जब 1993 में विधायक डेवलपमेंट ऑफिसर था, मेरे पास आके बोला करते थे कि नड्डा जी आपको खुशखबरी सुनाता हूं। मैंने कहा सुनाओ। तो कहते थे कि 2 पंचायतों में आपको 1 इंदिरा आवास योजना मिला है, बताइए किसको दूं मैं। अब मेरे लिए समस्या हो जाती थी, एप्लीकेशन हजारों में, और एक किसको दूं किसको नहीं दूं, मैं टेंशन में आ जाता था। कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना में तय किया कि कोई भी कच्चे मकान में नहीं रहेगा और 3 करोड़ 60 लाख मकान पक्के बना करके दिए। और त्रिपुरा में भी 3,50,000 पक्के मकान दिए गए। और हर विधानसभा में कम से कम 5 से 6,000 मकान दिए गए। কি করছো? এই ভাবছি আমাদের ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার চেঞ্জ করব। মাসে মাসে এত টাকা খরচ যাচ্ছে, নেটের স্পিড অত্যন্ত কম, সমস্যা হলেই বারবার টোল ফ্রিতে ফোন করো। আর সানডেজে তো আরোই ঝামেলা। তাহলে কি করবে? দেখছি